Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 12th related mathematics chapter 5th continuity and differentiability. We are on exercise 5.5 of NCERT. Question is, heading of the question is find dy by dx of the given functions. Here this function is mentioned as y raised to the power x is equal to x raised to the power y. So on taking log of both sides, हमने दोनों साइड्स का log लिया तो ये हो जाएगा log y raised to the power x is equal to log x raised to the power y. अब जैसा कि आप जानते हैं log m raised to the power n का फॉर्मूला होता है n log m. सो बिकॉज log m raised to the power n is equal to n log m, so here we can apply x log y. We may write it x log y क्योंकि यहाँ log m की पावर n मीन्स x log y हो जाएगा, ये n log m इज इक्वल टू, यहाँ m की जगह पर हमको y दे रखा था, n की जगह पर x दे रखा था, तो n log m मीन्स x log y, और ऐसे ही यहाँ पर y log x हो जाएगा. Now as you know it is first and second function in both the sides. दो functions हैं ये, first and second function. So in both parts we have to apply formula for product in differentiation. So because d by dx of f1x into f2x is equal to first function into differentiation with respect to x of second function plus second function into differentiation of second function with first function with respect to x. See, first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. यहाँ फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन log y है, और यहाँ फर्स्ट फंक्शन y है, सेकेंड फंक्शन log x है. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज log y प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज d by dx of x. Here it is first function into differentiation of second that is log x plus second function means log x, differentiation of first means d by dx of y that is dy by dx. So after this what we have to do, we have to differentiate this log y with respect to x. So first of all we have to differentiate it with respect to y. So log y differentiation with respect to y is 1 upon y. log y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y हो जाएगा. फिर y का भी हमको डिफरेंशिएशन लिखना होगा दैट इज dy by dx प्लस log y. Why is it so? Because differentiation of x with respect to x is 1 only, so we may leave it here only, because 1 into log y is equal to y upon x here, because differentiation of log x with respect to x is 1 upon x, so 1 upon x into y is y upon x, log plus log x dy by dx plus log x into dy by dx. Now what we have to find, see our heading is find dy by dx of the given functions. So we have to take the dy by dx terms in one side, मीन्स हम क्या कर रहे हैं अब LHS में dy by dx वाली टर्म्स को LHS में लिख रहे हैं. सो x अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y.
नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इन दोनों जगह से dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं. सो दिस विल बिकम x अपॉन वाई माइनस लॉग x अपॉन 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y अपॉन 1. नाउ वी कैन टेक y एलसीएम हियर, यहाँ पर हम y एलसीएम ले सकते हैं. तो x एज इट इज आएगा, बिकॉज y के टेबल में y 1 टाइम्स में आएगा तो 1 इंटू एक्स इज x, 1 के टेबल में y y टाइम्स में आएगा तो वी में राइट हियर y log x, यहाँ हम y log x लिख सकते हैं इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x v में राइट, क्योंकि x एलसीएम लिया तो x के टेबल में x 1 टाइम में आएगा तो 1 इंटू वाई वाई होगा, फिर 1 के टेबल में x टाइम्स में आएगा तो ये x लॉग y हो जाएगा. अब इसके बाद में dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स और फिर y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस वाई लॉग x. मीन्स ये y के अपॉन में x लिख दिया यहाँ पर हमने, ये y अपॉन एक्स, y को ऊपर ले गए, इसके अपॉन में x था, y अपॉन x अलग से लिख दिया. फिर उसके बाद में ब्रैकेट में हमने क्या लिखा y माइनस एक्स लॉग y और इसके अपॉन में x माइनस वाई लॉग x. आप इसमें एक और फॉर्मूला भी फर्दर लग सकता है, n log m इज इक्वल टू लॉग m रेज टू द पावर n, तो वो सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन यू मे लीव द आंसर हियर ऑल्सो, आप अपने आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 30. इट इज ओवर नाउ. नाउ सी आवर क्वेश्चन 14th क्वेश्चन इज cos x raised to the power y is equal to cos y raised to the power x. This is the given part in the question, and we have to find here dy by dx again. So on taking log of both sides, दोनों साइड्स का हमने log लिया, so this will become log cos x raised to the power y is equal to log cos y raised to the power x. log m की पावर n, n log m होता है, that's why it will become y log cos x is equal to, here it is x log cos y. अब जैसा कि आप जानते हैं इसको हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी मे राइट फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज log cos x, प्लस second means log cos x into differentiation of first, that is dy by dx. first y था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dy by dx is equal to first function into differentiation of second means d by dx of log cos x cos y log cos y and then plus second function into differentiation of first log cos y into डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये log cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x होगा. सो वी में राइट हियर y अपॉन cos x, क्योंकि log इसको मैंने x पढ़ा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह पर cos x है तो इसलिए अपन ने 1 अपॉन cos x लिखा. फिर चूंकि x की जगह पर cos x है तो फिर हमको cos x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अगेन, यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे प्लस ये एज इट इज होगा log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन cos y, जैसा कि इधर हुआ था y अपॉन cos x हुआ था, यहाँ पर x अपॉन cos y हो जाएगा. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos y अगेन
बिकॉज cos y ऑल्सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो log cos y एज इट इज आ जाएगा log cos y. नाउ आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट cos x विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बिकम sin x y इंटू साइन एक्स अपॉन cos x. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो ये माइनस साइन भी आएगा यहाँ पर. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और अपॉन में cos x, y को हमने अलग से लिख दिया, प्लस log cos x dy बाई डी एक्स, प्लस log cos x dy बाई डी एक्स. इज इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होगा, सो इट विल बिकम माइनस एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल साइन y अपॉन cos y. वी में राइट बिकॉज cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y होता है तो वो माइनस साइन लगाया साइन y और अपॉन में cos y ऑलरेडी था. फिर y का भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. यहाँ क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमको यहाँ पर. लेकिन वहाँ पर चूंकि y है तो हमको ये वाले y का भी डिफरेंशिएशन अलग से x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर dy बाई डी एक्स प्लस log cos y, प्लस log cos y. ये log cos y लिख दिया हमने. इसके बाद में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई टेन एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन वाई. इसको टेन वाई लिख सकते हैं और साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई. फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. सो दिस विल बिकम नाउ डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स जो हैं वो हम एल एच एस में ले आएंगे. ये एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा. तो पहले डी वाई बाई डी एक्स वाली दोनों टर्म्स को इधर लिख लेते हैं. एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स और वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई. ये वाई टेन एक्स उधर गया तो प्लस का हो गया, लॉग कॉस वाई लिख दिया उसके साथ में. इसको हम इधर लिख चुके थे पहले, तो एक्स टेन वाई प्लस का हो गया, इसके साथ में लॉग कॉस एक्स भी और साथ में डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म्स में था. अब ये दोनों टर्म्स में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं. सो इट विल बिकम एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई. एंड लास्टली जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो कैलकुलेट होकर के क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई और इसके अपॉन में एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स. ये हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज आवर आंसर. सो हियर इट इज़ द रिजल्ट. आप जब 14th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लॉग क्यों लिया है आपने, क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है. मीन्स जब पावर में कोई सा वेरिएबल हो तो एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए हम लॉग लेकर के इसको करते हैं तो ये इजी गोइंग सॉल्व हो जाता है. और बाकी हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बाकी तो आपको फॉर्मूले पता ही हैं. यहाँ पर लॉग लेने के बाद में ये n log m का फॉर्मूला लगा था, तो ये आपको यहाँ पर लिखना चाहिए कि log
m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। ये आपने फॉर्मूला लगाया था यहाँ, तो इसलिए आपने इसको पावर को यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, इस जगह पर ही अप्लाई हुआ था ये फॉर्मूला, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूले लगाते टाइम इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, किसी टाइप की कोई मिस्टेक ना हो, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो। और एक और मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, जैसे cos x का आपने sin x ही लिख दिया, माइनस साइन लगाना भूल गए, तो तब मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ लेंथी ओनली। नाउ सी आवर क्वेश्चन 15th, it is xy is equal to e raised to the power x minus y. So because here it is exponent form and here it is product, we may apply logarithmic function differentiation. So on taking log of both the sides, this will become log xy, here it is log e raised to the power x minus y. So we may write here log m into n is equal to log m plus log n. So log x plus log y we may write, यहाँ हम log m into n का फॉर्मूला लगाया हमने, तो log m plus log n लिख दिया इसको, और यहाँ दूसरा फॉर्मूला लगा, that is n log m x minus y log e. But here you have to remember, it is nothing means here it is e. So if both are same, then value is 1. So this will become 1. Now here you have to write the applied formula, log m into n is equal to log m plus log n, and here it is log m raised to the power n is equal to n log m. And here now this will become log x plus log y is equal to x minus y, because log e base e is equal to 1. ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा, अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर यहाँ log a बेस a होता तो भी 1 होता, log m बेस m होता तब भी 1 होता। अब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है मीन्स बेस e है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि अगर कुछ नहीं लिखा है आपने मीन्स इट इज़ नेचुरल लॉग, इट इज़ बेस e लॉग। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स ही लिखना होगा। नाउ differentiation of log x with respect to x is 1 upon x, so it will be 1 upon x plus log y का differentiation 1 upon y होगा plus 1 upon y, लेकिन y है यहाँ पर तो y को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। so we have to write here dy by dx is equal to 1 minus dy by dx. Why is it so? Because differentiation of x with respect to x is 1, so it will be 1 minus dy by dx. Now you can transpose this dy by dx or change the side of dy by dx from RHS to LHS, because we have to find the value of dy by dx, क्योंकि हमको dy by dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy by dx वाली टर्म्स को LHS में हम कलेक्ट कर रहे हैं। 1 upon y dy by dx प्लस dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। ये 1 एज इट इज लिखा, इस 1 अपॉन x को LHS से RHS में शिफ्ट किया तो ये निगेटिव 1 अपॉन x हो गया। अब यहाँ से हम जब dy by dx कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y माइनस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल टू
यहाँ 1 और x का एलसीएम x होगा, 1 के टेबल में x टाइम्स में आएगा, सो इट विल बी x माइनस 1. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी में राइट हियर 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x. और वी में राइट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हियर नाउ, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई. तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से सॉल्व होने के बाद हो जाएगा. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 15 विच इज ओवर नाउ. नाउ सी क्वेश्चन 16. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन given by f of x is equal to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to the power 4, 1 plus x raised to the power 8 and hence find f dash 1. और फिर इसके बाद में f dash 1 भी निकालना है. मैं आपको ये बता दूं कि f dash 1 मतलब f dash x निकलने के बाद आएगा, और f dash x हम किसको बोलते हैं, dy by dx को बोलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है, dy by dx ही f dash x कहलाता है. तो इसको आप सेम सेंस समझेंगे, ये आपको ध्यान रखना. अब आप f of x सबसे पहले इसको आप y असाइन कर दीजिए. f of x को अगर मान लीजिए मैंने y लिया और फिर इसका इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, लेट f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 8. दिस इज द फंक्शन ऑन टेकिंग लॉग. अब इसका लॉग इसलिए ले रहे हैं अपन, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन प्रोडक्ट लगाएंगे तो कितनी बार प्रोडक्ट लगाएंगे, इन दोनों में प्रोडक्ट लगाएंगे, इन दोनों में प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे उसमें भी प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम वेरी टफ, ये बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए हम इसका लॉग ले रहे हैं. ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स. दोनों साइड्स का हम लॉग ले रहे हैं. तो लॉग y, चूंकि हमने इसको y नाम दे दिया, इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 8. अब यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, log y इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इस पूरे का log लेने के बाद में log m इंटू n इंटू p इंटू q, m इंटू n इंटू p इंटू q अगर मैंने लिखा इसको, तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q. आप अगर चाहें तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, log mn p q इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q. ये फॉर्मूला है. तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. On differentiating with respect to x, जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स. log x का तो 1 अपॉन एक्स लिख दिया, लेकिन ये x नहीं, ये तो 1 प्लस एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ऐसे ही यहाँ पर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा. सिमिलरली हियर ऑल्सो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 4 और फिर वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 4 ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 8 और फिर इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर 8 ऑल्सो.
ये इसका पूरा पार्ट होगा। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, x का 1 होता है, और ये y यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू y इंटू 1/1 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ, तो 0 प्लस 1 दैट इज़ 1, तो 1 इंटू 1 ये 1/1 प्लस एक्स। फिर यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लेकिन प्लस के साथ में x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, सो दिस विल बिकम 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, x की पावर n इजिकल x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन nx रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 4x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 मीन्स 3, तो 4x क्यूब के अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 होगा, प्लस यहाँ पर 8x रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, सो 8x रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8। अब dy बाई dx को मैंने आपसे क्या बोला था, इसको हम f डैश एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या f डैश एक्स। तो f डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ y की वैल्यू डालनी पड़ेगी अब हमको, तो y की वैल्यू कितनी है, ये पूरी, सो हियर इट इज़ इन प्रोडक्ट फॉर्म विच यू हैव टू मेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8, ये सब इंटू में लिख दिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज़ इंटू में 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 8x रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8। ये हमारा आंसर, एक आंसर तो ये हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तो निकाल लिया हमने। एक और आंसर पूछा है कि फाइंड f डैश 1 ऑल्सो, सो f डैश 1 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, x की जगह पर 1 लिखना होगा यहाँ पर। सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, सो f डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। वाई इज इट सो? क्योंकि x की पावर मतलब 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 ही आता है, तो यहाँ हम 1 प्लस 1 4 टाइम्स लिख देंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। और यहाँ 1/1 प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ मैं 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ x की जगह 1 रखा तो 2 1 2 1 प्लस 1 2/2, तो प्लस 2/2, यहाँ 4 इंटू 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 1 4/1 प्लस 1 मीन्स 4/2, यहाँ 8/1 प्लस 1 मीन्स 8/2 प्लस 8/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 2 4 हो गया और ये 2 4 8 हो गया, तो यहाँ हमारा रिजल्ट जो होगा f डैश 1 जो आएगा वो 2 2 2 2 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 कितनी बार है यहाँ 4 टाइम्स है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ 2 अंदर 2 हुआ था तो 1 प्लस 2 प्लस 4 मीन्स 7, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश 1 जो है वो आएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 इंटू, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 7 to the 14 अपॉन 2, 2 8 जा 16 होता है, तो 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 हो जाएगा ये, 14 प्लस 1 15, यहाँ 2 LCM लिया था हमने तो 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आया था,
2 7 14, तो 1 + 14 दैट इज 15, 8 × 15 120, ये हमारा f-1 हो जाएगा। तो ये f-1 भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। Like our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, subscribe it and share it as much as possible.